Hello everyone and good morning. In the previous lecture of chemical bonding, lecture number 9, we have gone through the formation of BF3 molecule, at the same time formation of ethyl molecule also. I think that right now you must be clear with all the concepts that how the formation of different molecule takes place on the basis of sp3, sp2 as well as sp type of hybridization. Now in today's lecture we have to see here what are the importance of valence bond theory. Valence bond theory के क्या है importance? So I will say that valence bond theory put forth all these 5 important concepts. The first one is here delocalization of electron over the two nuclei. Delocalization means what here? Electrons they get delocalized in between the two nuclei. So here ये है हमारा पहला important concept, delocalization. मतलब इनका location कहाँ पे है? In between the two nuclei, right? Then the shielding effect of electrons. Now after studying the chapter, इसका नाम है periodic table. आपको पता होगा what is the meaning of the term shielding effect. तो यहाँ पे ये second term जो है it can be also explained by the valence bond theory, that is nothing but the shielding effect of the electrons. Third thing is here the essential covalent character of a bond. You know that whenever the sharing of electron pair takes place, there is a formation of covalent bond. We have seen the formation of methane molecule, ammonia molecule, water molecule, as well as BF3, C2H4, C2H2. Yes, तो ये आपने देखा होगा. इसमें क्या होता है? There is a presence of covalent character. Yes, it can be better explained by the theory of valence bond theory. Point number 5, the presence of partial ionic nature in a covalent bond. See students, for example, I think I told you regarding the formation of HF molecule also. Yes, तो H और F के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये सेंटर में नहीं होता है. I told you both these atoms, that is hydrogen as well as fluorine, they will attract the electron pair towards itself. जिसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इलेक्ट्रॉन की पेयर अपनी तरफ खींचने को कामयाब होगा. सो ऐसे केस में हियर फ्लोरीन इज मोर electronegative, that's why it will have electron pair towards itself and hence it will acquire delta negative charge and hydrogen will acquire delta positive charge. तो ऐसे में ये जो HF molecule है ये हो जाएगा polar. I will say fluorine will acquire delta negative charge and hydrogen will acquire delta positive charge. So now they are having partial ionic character. So such a kind of presence of partial ionic character can be better explained by the valence bond theory. And last point is that the concept of resonance. अभी resonance क्या है इसके बारे में हमें देखना है बाद में. I will tell you in details because to explain resonance properly we at least require one lecture. So the concept of resonance and connection between the resonance energy ये भी इसी में आएगा and molecular stability. तो ये सब चीजें जो है they can be better explained on the basis of valence bond theory. So we can say these are nothing but the importance of valence bond theory. Okay. Now after that we have to see here what are the limitations of valence bond theory. Yes, I will write here limitations.
So I will say that the first limitation of VBT is that VBT ये है शॉर्ट फॉर्म वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी explains properly how the covalent bond formation takes place. At the same time, it forget to explain the formation of coordinate bond. Now, ये जो है concept of coordinate bond, ये आपके लिए नया है. So I will write here, in case of coordinate bond, I will say here, क्या होता है? I will give one example for you. Suppose you know that there is a ammonia molecule. अभी मैंने आपको समझाया है how to write the Lewis structure for the ammonia molecule. नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो उसके लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स. So 1, 2, 3, 4, 5. I will write for nitrogen atom. At the same time, for hydrogen we have to write here 1 electron only. So here is 1, 1 and 1. If you see properly, यहाँ पे n का पूरा हो जाएगा ऑक्टेट. कैसे? 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8. Now the next example I will tell you, जो हमने लिया था लास्ट लेक्चर में, और वो है BF3 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल. बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो उसके फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो 3 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, 1 2 3. You know that as per the Lewis structure, we have to show the electrons present only in the outermost shell. तो यहाँ पे है 3. For fluorine, we have to write here 2 7. So we can say here for fluorine there is the presence of 7 electrons. So here 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. And same here 1 2 3 4 5 6 7. अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रॉपरली तो आपको समझ में आएगा कि फ्लोरीन का तो यहाँ पे पूरा हो रहा है ऑक्टेट, इसका भी पूरा हो जाएगा, इसका भी यस पूरा हो जाएगा ऑक्टेट. लेकिन जहां तक सवाल है बोरॉन का, तो बोरॉन का ऑक्टेट यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है. यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है बस. ऐसे में अगर अमोनिया मॉलिक्यूल और BF3 मॉलिक्यूल है तो अमोनिया मॉलिक्यूल विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर. मतलब वो देगा नहीं बिल्कुल, बट इट विल शेयर द एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये अपना इलेक्ट्रॉन BF3 को मतलब बोरॉन को देगा. ऐसे में यहां पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. स्टूडेंट्स, इसके लिए और एक नाम है, वी कैन ऑल्सो से इट एज डेटिव बॉन्ड. इट्स अ टाइप ऑफ a covalent bond again. इसमें अगर आप देखा जाए तो अमोनिया ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है BF3 को, तो अमोनिया को मैं कहूंगा लेविस बेस. लेविस बेस. जो स्पीसीज, चाहे वो एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो या फिर आयनिक अगर स्पीसीज हो, तो वो जो इलेक्ट्रॉन देगा that is known as Lewis base. and जो species इलेक्ट्रॉन का पेयर लेगा that is known as Lewis acid. So here this thing we have to remember, student. So the first limitation of valence bond theory is that valence bond theory explains properly the formation of yes covalent bond, but it failed to explain the formation of coordinate bond. This is the first limitation. Second thing is that, students, number 2, VBT के अनुसार, I mean according to the valence bond theory नुसार सांगायचं झालं तर valence bond theory जी आहे यानुसार
ऑक्सिजन मॉलिक्यूल जो असतो, ऑक्सिजन मॉलिक्यूल इट इज डायमॅग्नेटिक इन नेचर. डायमॅग्नेटिक इन नेचर. आता तुम्हाला आधी माहित पाहिजे की व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक अँड फेरोमॅग्नेटिक. I will tell you in short. Students, as far as magnetic behavior is concerned, substances are of three types. First one is known as paramagnetic substances. Second one, they are known as diamagnetic substances. And third one, they are known as ferromagnetic substances. क्या होता है मीनिंग पैरामैग्नेटिक का? Students, I will tell you one thing. You know that this is nucleus and this is suppose the electron which is revolving around the nucleus. This electron it also acts as just like the tiny magnet. Tiny magnet. You know what is magnet? म्हणजे काय असतं? चुंबक. You know? So that electron it behaves like a tiny magnet. So अगर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी ऑर्बिटल में अगर होते हैं unpaired electrons, suppose 1, suppose 2 or 3, 4, whatever, इन्हें हम लोग कहते हैं unpaired electron. If the substance or the we can say here atom it contain unpaired electron, then it can show magnetism. I mean it get weakly attracted in the magnetic field. Such a kind of substances they are known as a paramagnetic substances. ऐसा कोई भी एटम जिसमें एक या फिर दो या फिर तीन या फिर चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, that is known as paramagnetic substance. ओके? आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है? जब भी होता है अपवर्ड स्पिन, तो ऐसे में स्पिन क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा s, आई विल राइट हियर +1/2. इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है इट रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट आई हैव एक्सप्लेन यू इन द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. लेकिन देखिए अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है जिसका सिर्फ क्या है, स्पिन है पॉजिटिव 1/2, ऐसे में क्या रहेगा, वो रहेगा मैग्नेटिक. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सब के सब अगर पेयर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर देखिए ये है डी ऑर्बिटल और किसी के लिए फॉर एग्जांपल स्पेशली जिंक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन सब के सब अगर पेयर्ड है तो ऐसे में क्या होगा पता है, पहले इलेक्ट्रॉन का जो रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेगा. तो ऐसे में जब सब इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे पेयर्ड तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन नहीं दिखाता. आई मीन इट इज गेट रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. सच अ काइंड ऑफ सब्सटेंसेस दे आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. Some of the substances they are strongly magnetic in nature. For example, iron, cobalt. Cobalt का C चाहिए कैपिटल, O चाहिए स्मॉल. आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल ये ऐसे हैं एलिमेंट्स जो कि है फेरोमैग्नेटिक. They have strong attraction in the magnetic field. So when the magnetic field is there in the vicinity of such a kind of elements, then they can show strong attraction for the magnetic field. That is
दे आर नोन एज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बस इतना ही नहीं, दे कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, इनसे हम लोग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में अबाउट द मैग्नेटिज्म, एंड यू मस्ट बी नोन अबाउट द सोलेनॉइड, ठीक है ना। तो इट हैज टू पोल्स व्हेन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द बार, आई मीन रॉड। तो क्या होता है आपको पता है। तो ऐसे जो होते हैं सब्सटेंस, इनको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, एज पर द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट बिहेव्स, इट इज जस्ट लाइक अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, बट इट इज प्रूव्ड दैट oxygen molecule is not diamagnetic but it is paramagnetic in nature, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे तो इन केस ऑफ diamagnetic substances all the electrons are paired, so there is no chance पहले इलेक्ट्रॉन का डायपोल आई मीन मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो दूसरे को कैंसिल करेगा, and that's why here there will be yes there will be no attraction in the magnetic field. So as per the valence bond theory, oxygen molecule is diamagnetic in nature, but in fact it is not diamagnetic but it is paramagnetic. तो ये है इसका सेकंड लिमिटेशन, क्योंकि VBT ने क्या बोला, as per the VBT ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, लेकिन वो क्या है, वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। Then the third thing I have to tell you, yes, some molecules like a B2H6 diborane, जिसमें बोरॉन जो है it is present at the center, just that we have seen for the C2H4 या फिर C2H2. बोरॉन इज ॲक्च्युली नॉट हॅव्हिंग इट्स ऑक्टेट कंप्लीटेड. बोरॉनच्या लास्ट शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण नहीं है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से भी कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं. तो B2H6 जैसे मॉलिक्यूल जो कि जिसमें सेंट्रल मेटल एटम का नहीं पूरा होता है ऑक्टेट, ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो दिस आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. I repeat in short, the first thing is that valence bond theory clearly explains the formation of covalent bond, but at the same time it fails to explain the formation of coordinate bond, or also known as a dative bond. ठीक है. Second thing, as per the valence bond theory, oxygen molecule should be diamagnetic, but in fact it is paramagnetic. Third thing, valence bond theory fails to explain the formation of the molecules like B2H6, in which the boron atom is an example of incomplete octet. और ये क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था, right? Yes. So these are the limitations of valence bond theory. I just think that you should write all these points properly and give me some break to rub this. Students, in case of, if you see valence bond theory, we have seen what are the limitations of VBT. So to overcome the limitations of valence bond theory, the new theory we have to see now, that is nothing but the molecular orbital theory. इसका है short form MOT, molecular orbital theory. इससे क्या है की फैक्ट्स जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, one by one I will explain you. See, in some cases
एक्चुअली वीबीटी की अगर हम बात करें तो वीबीटी कैन क्लियरली गिव्स एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट ओनली इन सम केसेस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिव्स correct description of the electrons in some cases, but you know that MOT gives more accurate description of electronic structure of molecules. Okay, in case of few molecules, VBT fail to explain the proper electronic description for the molecule. Okay, that's why I know that I told you MOT, why it arrives. MOT gives more accurate description of electronic structure of molecules. जैसे कि मैंने कहा आपको कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखा था हमने, एज पर द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसका फॉर्मेशन जो होता है, एंड एज पर द वीबीटी इट इज नथिंग बट द डायमैग्नेटिक इन नेचर, बट इन फैक्ट इट्स अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. तो वो कैसे है पैरामैग्नेटिक, इट कैन बी बेटर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ MOT. ओके, सो द कंसेप्ट ऑफ एन ऑर्बिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स. यस, वी नो दैट, ये हमने देखा था इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर. द क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन and its solution is called wave function. The quantum mechanical wave function is a differential equation and its solution is called as a wave function. Yes, the square of the wave function gives the measure of probability of finding an electron with a certain region of a space of an atom. It is nothing but the atomic orbital. आपको पता होना चाहिए, this is the definition of atomic orbital. Atomic orbital is the space or the region around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. इलेक्ट्रॉन अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जहाँ पे स्पेंड करता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल. Remember this point here. The square of the wave function gives the measure of probability, मतलब possibility, yes, of finding an electron with a certain region of a space, जिसको हम लोग बोलते हैं atomic orbital. Clearly, the definition of atomic orbital we see, it will be like this: the three-dimensional region of a space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. न्यूक्लियस के अराउंड वाला 3D रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की संभावना ज्यादा होती है, नियर अबाउट 99% ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन स्पेंड देयर, दैट इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स. आपको पता है, हम देखे ना, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर नथिंग बट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. 10 MO का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. कंसिडर्स द मॉलिक्यूल एज अ होल rather than an atom for bonding. एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था, you know that MO मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इट कंसिडर्स द मॉलिक्यूल एज अ होल rather than atom for bonding. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में रहेंगे 2 ऑक्सीजन के एटम्स. तो इनके एटम जब भी कंबाइन होंगे, सो MO दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इट विल कंसिडर होल एज अ मॉलिक्यूल. ये किसी एक एटम के बारे में नहीं कहेगा, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के बारे में कहेगा. ठीक है, सो इट कंसिडर्स द मॉलिक्यूल एज अ होल rather than an atom for bonding. Then according to MOT, molecular orbital is the property of molecule similar to what an atomic orbital is to an atom. Yes, you know that we have seen now in detail the chapter structure of atom. आपको पता है इसमें क्या होता है कि for any atom suppose depend
on the electronic configuration, it may have s orbital, p orbital, d orbital as well as f orbital. So all these are nothing but they are known as atomic orbitals. So in case of here MOT, we can say there is also presence of here molecular orbitals. वो जो थे s, p, d, f ये थे atomic orbitals. अभी हम बात कर रहे हैं molecular orbitals. Students, just imagine two atoms are there and now they will combine. There is overlap. So this MOT it consider molecule as a whole, not a single atom. Like atomic orbital, molecular orbitals have energy levels and definite shapes. Yes, now you know that what is the energy level, as well as they have definite shapes. They also have maximum 2 electrons with the opposite spin. जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर होता है ऑर्बिटल जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं, it is according to the Hertz rule. But you know that for any box we can write just 2 electron, one with the upward spin and the other with the downward spin. So these are the key facts that we should know about the molecular orbital theory. Students, it's a very very important theory, and remember this chapter is also there for CET, for JEE or for NEET, any type of exam, and the same will be the syllabus for that. No, in case of inorganic chemistry there is not so much change in the syllabus for all these 3 streams. Okay, so ये है इसके बारे में. यहाँ पे AO का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल और जो लिखा है मैंने MO का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. So now this theory we have to see in detail. Before that just write down all these things. These are the key facts. इनके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, but this should be properly understood so that we can see the formation of different molecules on the basis of molecular orbital theory. ठीक है. Note down this one. Now let's see the most important part of the chapter, formation of molecular orbitals. इसमें आपको definitely question आएगा. I mean how the formation of different molecules takes place on the basis of MOT, that is molecular orbital theory. इसके जो important points हैं मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ताकि आप उसको नोट कर सको. At the same time, one by one I can give you the deep explanation for this. Now see here, important points. According to the MOT, formation of molecular orbitals from atomic orbitals is expressed in terms of LCAO. LCAO का मतलब होता है linear combination of atomic orbitals. Formation of MO, अभी जब भी मैं कहूंगा MO तो आपको समझना है इसका मतलब क्या होगा, molecular orbitals. जब भी मैं कहूंगा AO का मतलब होगा atomic orbitals. So here this formation of molecular orbitals from atomic orbitals, it can be expressed in terms of LCAO, that is linear combination of atomic orbitals. Okay? This formation can be understood by considering the interference of the waves of combining atoms. Students, let me tell you one thing. आपको पता है ये जो होता है, that atom, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, and the electron present here, that we have seen that this electron present here, it has dual nature. It can have particle nature as well as wave nature. तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, it will have the wave nature like this. So I will show here the wave nature of electron like this. Means here, just like the wave, you can write here
Yes. So electron moving around the nucleus, it has a wave nature as well as particle nature. Okay. So this formation can be understood by considering the interference of the electron waves of the combining atoms. सोचिए अगर दो एटम्स ये कंबाइन होंगे, एक एटम ये पहला है, दूसरा एटम जो सेम है इस तरीके से, तो क्या होगा, इनके वेव्स के बीच में होगा इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स कैन बी कंस्ट्रक्टिव और कैन बी डिस्ट्रक्टिव. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या लिखा है मैंने इसमें? द इलेक्ट्रॉन, I mean the interference of the electron waves, it can be constructive or destructive. सोचिए ये जो वेव मैंने यहां पे दिखा है, समझो सपोज दिस इज अ वेव. अभी यहां पे ये है पहले एटम का. अभी यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये है इसका मीन पोजीशन. वी कैन राइट इट एज अ मीन पोजीशन ऑफ द वेव. इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? That is known as amplitude. That is known as amplitude. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेचर है, ये समझो अगर इस तरीके से हमने इसको दिखाया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट. So we can show it by the positive symbol suppose. और ये जो दिख रहा है आपको नीचे, इसको हम लोग मालूम क्या बोलते हैं? That is known as ट्रफ. ठीक है, जिसको हम लोग दिखाते हैं negative symbols. It just only for the convenience purpose. ये सिर्फ इसका साइन कन्वेंशन है. Don't take in a mathematical way positive and negative. तो ये जो क्रेस्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? ये है इसका क्रेस्ट और ये है यहाँ पे ट्रफ. ये समझो है एक एटम के लिए. ओके. नाउ इफ द अदर एटम will suppose it has same kind of nature, जिसमें अभी ये है पहले एटम के लिए अब और ये है दूसरे एटम के लिए, उसके लिए भी अगर सोचिए है इधर क्रिस्ट और ये नीचे है अगेन ट्रफ. तो ये है पहले एटम के लिए और ये है दूसरे एटम के लिए. तो ये दो वेव जो अगर ये दोनों कंबाइन होते हैं, ये है पहला एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इनका जो भी होगा रिजल्टेंट, इससे क्या होगा बताएं? जो भी रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नेचर ऑफ द वेव, तो ये क्रिस और क्रिस ऐड होके यहां पे बड़ा सा क्रिस बन जाएगा. सो here we can say there is addition of the two wave function, it will takes place. Understand? तो यहां पे क्या होगा? This formation can be, I told you, understood by the considering interference of the electron waves of the combining atoms. Interference of the electron waves can be constructive, तो हम इसको नाम देंगे constructive, क्योंकि ये दो क्रिस का मिलाकर बड़ा सा क्रिस फॉर्म होगा. एट द सेम टाइम ये दो ट्रफ मिला के क्या होगा? बड़ा सा यहाँ पे ट्रफ फॉर्म होगा. ऐसे में मैं कहूंगा इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस. ठीक है, ये है पहला वाला केस. तो जहां तक बात है कंस्ट्रक्टिव की, तो इसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से दिखाएंगे. नाउ सपोज वी हैव टू शो द डिस्ट्रक्टिव नेचर हियर. यस, तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या रहेगा? सपोज द फर्स्ट इज जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे मैं कहूंगा पॉजिटिव, ये है निगेटिव. और दूसरे एटम के लिए सोचिए यहाँ पे है ट्रफ और दूसरे का है यहाँ पे क्रिस्ट. तो इसके लिए निगेटिव है, इसके लिए यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव. ये है पहले एटम के लिए और ये है दूसरे एटम के लिए. अगर ये दोनों सोचिए अगर मिल जाए तो ऐसे में क्या होगा? I will say it is nothing but the destructive type of interference. सोचिए इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो जो भी रहेगा रिजल्टेंट, इसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड
इट इज नियरली इक्वल टू जीरो, वी कैन से इस तरीके से रह जाएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर हमने यहाँ पे ऐड किया तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ ऐड होगा और इधर भी वही होगा, निगेटिव पॉजिटिव के साथ में। तो इधर ये जो रहेगा इस तरीके से रहेगा एम्पलीट्यूड सॉरी। तो ये मैं कहूंगा कि ये होता है डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। तो ये है पॉइंट नंबर 3। सो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन इन टू वे, बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शन और बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। तो ये जो होता है एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, आप यहां पे अभी देख सकते हो, मैंने यहां पे डायग्राम निकाला है। तो ये है, इधर क्या हुआ, यस एडिशन हमें दिखाया है जिसमें फॉर्म होगा, यस वी कैन से हियर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हियर BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहां पे जो प्रोड्यूस होगा ये रहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टूडेंट्स। By addition of the wave function, we can write here bonding. There is a formation of bonding molecular orbital, and by the subtraction of the wave function, there is a formation of anti-bonding molecular orbitals. Okay, so here we can say like this. Yes. ओके, सो ये है रिगार्डिंग BMO एंड एंटी बॉन्डिंग। आई मीन BMO का मतलब होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड नाउ यू कैन सी, ये दिखाया है मैंने डायग्राम में, यहां पे मैंने दिखाया, पता है क्या है, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल पहले एटम का। आप यहां पे देख सकते हो, मैंने यहां पे लिखा है वेव फंक्शन A, और ये है एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम का। यहाँ पे समझो मैंने इसका लिखा है वेव फंक्शन B। आप देख सकते हो इसका स्पिन कैसा है अपवर्ड, तो इसका स्पिन कैसा है डाउनवर्ड। अभी ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये कंबाइन हो जाएंगे, देयर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ऐसे में क्या बनेंगे यहाँ पे, तो जो है नीचे वाला, इसको मैं बोलूंगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके लिए आप देख सकते हो कि इसकी एनर्जी कम है, ये यहाँ पे दिखाया है मैंने उसका इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, तो इसकी एनर्जी यहाँ पे कम होगी, और ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे मैंने यहाँ पे सिग्मा से डिनोट किया है। एट द सेम टाइम ये जो है इसको मैं कहूंगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये अगर बॉन्डिंग है तो ये कौन सा है, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको मैंने सिग्मा स्टार से डिनोट किया है। मैं बाद में इस पे आऊंगा कि किस तरीके से होता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है मुझे वो प्लेस करने के लिए, बट आफ्टर दिस आई विल आल्सो टेल यू इन डिटेल। तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी, और आप देख सकते हो इससे भी कम है इसकी एनर्जी। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से। एंड ये जो है ऊपर वाले, ये है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिनका होता है हायर एनर्जी देन दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। सो यू कैन सी, ये आएंगे ऊपर, ये है एंटी बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों तरफ है एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में मैंने लिखे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो होते हैं दो टाइप के, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, दूसरे फॉर्म होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। सो इसको मैं दिखाता हूं सिग्मा से, तो इसको मैं दिखाता हूं सिग्मा स्टार से, ठीक है। नाउ इन BMO bonding molecular orbital, the large energy density is observed between the nuclei,
of bonding atom, and in case of anti-bonding molecular orbital, electron density is 0 between the nuclei. अगर आप देखोगे तो in case of BMO, it will be better to show you the structure like this here. मैं दिखाता हूं यहां पे so that you can understand here. बॉन्डिंग के लिए कुछ इस तरीके से रहेगा स्ट्रक्चर. ये है दोनों न्यूक्लियर एंड यू कैन सी दिस अ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ये है बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए रहेगी. यू कैन सी दिस अ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, इधर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. और ये क्या है, ये दोनों है न्यूक्लियर. These are nothing but the nuclei, and you can see there is a large electron density in between the nuclei for bonding molecular orbital. वही अगर आप देखोगे तो in case of anti bonding में क्या होता है पता है? So you can see ये है इसका न्यूक्लियस और ये है इसका न्यूक्लियस, एंड ये जो बीच में जगह है जिसको मैं बोलूंगा नोडल प्लेन. नोड ऐसी जगह होती है जहां पे होती है जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड यू कैन सी देयर इज अ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो बिटवीन द न्यूक्लियाई. यहां पे आप देख सकते हो बिल्कुल भी है जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ये मैंने दिखाया है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जहां पे बिल्कुल जीरो है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी. ऐसे में यहां पे मैंने क्या बोला कि देयर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है, मैं चाहे तो यहां पे ब्लैक डॉट से दिखाऊंगा. तो ये है इसका, ये है इनका न्यूक्लियर एंड इसके लिए भी दिखाऊंगा मैं न्यूक्लियर हियर. सो यू कैन सी देयर इज अ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियर एंड हियर इज अ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in between the nuclei for anti-bonding molecular orbital. Now students, so placing an electron in bonding orbital leads to formation of covalent bond. अगर होता है फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड तो उसके लिए क्या होना चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का. और यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी होने के कारण अगर वो इलेक्ट्रॉन रहेगा बॉन्डिंग में तो ऐसे में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने की ज्यादा होती है पॉसिबिलिटी. एंड हियर व्हाइल प्लेसिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेक्स द बॉन्ड अनस्टेबल. अगर ये एंटी बॉन्डिंग में आते हैं इलेक्ट्रॉन तो क्या रहेगा, ऐसे में बॉन्ड क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा. ये जो मैंने बताया है आपको, मैं चाहूंगा कि इस लेक्चर को आप कम से कम 2 या 3 बार सुनो और प्रॉपरली इसके नोट्स भी लिख लो. ओके ओके, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एमओटी का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा, 4 मार्क्स के लिए आएगा और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में. ठीक है, तो ये आपको समझना है. देखिए ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बीच में होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ये है इंक्रीजिंग एनर्जी. यहाँ पे जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, I mean the number of atomic orbitals they will participate, same number of molecular orbitals will also form, but they, you know, the atomic orbitals they should have comparable energy, nearly the same energy. Okay, तो ये होना चाहिए. अभी यहाँ पे ये मैंने दिखाया है psi A and ये है psi B, and now you can see ये होते हैं 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. एक होता है बॉन्डिंग वाला, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग वाला. बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए. सो इस तरीके से आपको इसको समझना है. बाकी ये चीजें तो ये आपको भी समझ में आया होगा. आई होप सो. नाउ सी दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे के जो भी लेक्चर्स हैं एमओटी के लिए, ये अगर आपको समझने हैं तो मैं चाहूंगा कि ये लेक्चर आप कम से कम 2-3 बार या फिर जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आए तब तक देखिएगा. ठीक है, फिलहाल आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू हाउ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ molecular
orbital theory. Okay, till that time take care and keep studying. Homework जो बच्चे नहीं करते हैं, I will take a very strict action against them. Okay, please be sincere in case of studies. Okay, so see you in the next lecture. Have a nice day.